क्रिसमस में આપણે ક્રિસમસ સેલિબ્રેશન માં આપણે મેડમ કરે વૈશાલી कोरोना चालू था एडमिशन का मेरा आवाज मेरे को आखिर केली लेना कैमरा कैमरा नहीं Okay, good morning, all of you. I hope my voice is clear now. Am I audible? Yes, Ankur, you are audible. Okay, okay. So sorry for the inconvenience caused. We at Assam Don Bosco University are extremely sorry to every one of you. So that for the 5 minutes delay that is been caused because of the noise that was created at some end of the what to say program. So I would like to extend my warm welcome to the today's speaker, Mr. Manas Pathak. We are really very thankful to you for accepting our invitation. So as an introductory lecture, I would like to say a few things about our institution's Innovation Council. The Institution Innovation Council, Don Bosco College of Engineering and Technology, was formed in the session 2018-19 under the guidelines of Ministry of Education's Innovation Cell. The IIC takes part as well as organizes various activities which boosts entrepreneurship, innovation, design thinking, etc. IIC is committed to spread the awareness about IPR, patent, trademark, copyright, etc. among the youths. We believe that a startup ecosystem is the need of the hour for the development of the nation as well as to overcome the unemployment issue in our society. The IIC is uh, we, co we coordinate the functions of the IIC as per the guidelines of MIC, which is Ministry of Education's Innovation Cell. So as per the guidelines of MIC, we are conducting this Impact Lecture Series. Impact Lecture Series is conducted with the support of Ministry of Education's Innovation Cell, All India Council for Technical Education. The Impact Lecture Series intend to generate awareness and skill on innovation, entrepreneurship, IPR, etc. among students and faculties of IIC institutions. The first session was successfully conducted on 31st May 2022, and today we are having the second session, a series of two lectures. Already Mr. Arunjyoti Borgohai, director cum co-founder of Yantrabot Technologies, have given a very beautiful lecture in the morning half. So we are looking forward for a very fruitful session. So with this, I would like to conclude my introductory speech, and thank you. Thank you to all of you. Over to Gitartho. Thank you, Ankur sir. So here I would like to take the opportunity to welcome Mr. Manas Pratim Pathak sir. So he is a Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering, and presently he is associated with Tool Room and Training Center Guwahati. He is the faculty cum EDC coordinator in Tool Room and Training Center Guwahati. He has a total experience of 6 years. We are glad to welcome you, sir. So with this, we'd like to ask you to start your speech, and would like to ask the participants to participate and also interact with sir. And we all hope that it will be a very beneficial session for everyone. Thank you. Thank you, Gitartha Kalita. Thank you, Ankur Jyoti Goswami sir, for such a beautiful introduction.
everyone now knows that my name is Manas Pathak, and I'm working with Toolroom Training Center Guwahati from last 6 years, and I'm a faculty cum EDC coordinator. EDC means Entrepreneurship Development Cell. So today our session is of entrepreneurship. So let's start the session. I have a small presentation to bring forward to you. So let me start the presentation. Is my screen visible? Yes, yes, it is visible. So during this session, I will stop my video because of some network issues. So and after the session, we will take 10 minutes interaction. So I will conduct the presentation, and any queries you can ask me later. Okay, thank you. So Toolroom and Training Center Guwahati is a Government of India society. So here we are developed by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises so that we can give necessary support to the local MSMEs and to bring forward the youth so that they can be develop them as a manpower for the local MSMEs and also to develop local entrepreneurs. So this is bit introduction about Toolroom Training Center. So let's start with our topic, that is entrepreneurship. तो entrepreneurship जो है, जो ये entrepreneurship पहले भी था, ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी वक्त में ये एंटरप्रेन्योरशिप का अवेयरनेस थोड़ा ज्यादा बढ़ा है. क्यों? क्योंकि देखिए पहले भी तो ऐसा नहीं था कि बिजनेस नहीं था. एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या है? बिजनेस. एंड बिजनेस मींस व्हाट? इट्स अ ट्रेडिंग. मतलब कुछ कहीं से मैंने कुछ खरीदा, वो सामान को कहीं पे मैंने बेचा या कुछ बना के मैंने उसको बेचा, तो उसको बोलता है बिजनेस. तो एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग भी सेम ही है, बिजनेस ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है. हम लोग आजकल नया बिजनेस को जो भी डेवलप होता है, स्टार्टअप्स करते हैं, उन लोग को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ना कि हम लोग बोलते हैं कोई एक नॉर्मल बिजनेसमैन. सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल बिजनेसमैन एंड अ एंटरप्रेन्योर. तो वही बात को हम लोग समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. ठीक है. So entrepreneur is one who ventures out by utilizing locally available resources, who prefers changes as a means of growth and in the process is prepared to take calculative risks. मतलब जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन है वो क्या करता है? वो कहीं से कुछ सामान खरीद के लाएगा और उसी सामान को अपना रिटेल शॉप या फिर कहीं पे जाके वो बेचता है किसी और को. उससे जो प्रॉफिट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग और उसको बोलते हैं बिजनेस. लेकिन एक एंटरप्रेन्योर होने के लिए आप लोगों को क्या होना पड़ेगा? इसी फर्स्ट पैराग्राफ से हम लोग को पता चलेगा कि जो एंटरप्रेन्योर होगा वो एकदम से जो हम लोग का लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज है, दोज एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज, इट मे बी अ नेचुरल रिसोर्स, इट मे बी अ ह्यूमन रिसोर्स, उसको अगर लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को हम लोग यूटिलाइज करके कुछ एक नया करते हैं, कुछ एक नया बिजनेस डेवलप करते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका सिर्फ खुद का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. वो एंटरप्रेन्योर जो है, जो अभी लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके जो अपना बिजनेस रन करेगा, वो ना कि खुद का इंडिविजुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर ही काम करेगा, वो क्या करेगा? एक सोसाइटी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करेगा. ठीक है. तो देखिए अभी जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को हम अगर यूज करेंगे तो क्या होगा कि सपोज अभी मैं एग्जांपल देता हूँ. हम लोग आसाम में एक जगह है हम लोग का हाजो बोल के, तो वहां पे हम लोग का ब्रास क्लस्टर का काम होता है, मतलब ब्रास मेटल का काम होता है. ठीक है. अगर वो हम लोग का किया है एक लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब ये हम लोग का ये पार्ट में ब्रास बनाते हैं अपनी लोग. तो अगर मैं उसको रिलेटेड हम लोग ये कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? मेरा भी प्रॉफिट होगा उससे, और साथ ही साथ जो हम लोग जो उस एरिया का लोकेलिटी का पर्सन है तो उनका भी क्या होगा? उसके साथ बेनिफिट होगा. तो इसीलिए हम लोग ये जो एंटरप्रेन्योर रिवॉर्ड है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम लोग बिजनेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं. बिजनेस का मतलब जो था कि हम लोग बाहर से कुछ लाते हैं सामान, उसी को बेचते हैं. तो उसी को कॉन्सेप्ट को हम लोग को क्या करना होगा? थोड़ा सा चेंज करना होगा.
क्योंकि देखिए अगर बाहर से हम लोग कहीं कहीं से भी खरीद के ला रहे हैं सामान को, तो वो क्या हो रहा है कि उस जगह को थोड़ा मुनाफा मिल रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है उसी सामान को हम बेच रहे हैं। मतलब यहाँ से जहाँ पे हम लोग बेचेंगे, सपोज मैं दिल्ली से सामान ला रहा हूँ, सामान को लाके मैं यहाँ पे गुवाहाटी में उसको बेच रहा हूँ रिटेल शॉप में, जैसे कि क्लोथ्स वगैरह का होता है। तो उससे क्या होता है कि मैं दिल्ली में तो खरीदा पैसा देके, तो खरीदने के बाद वो सामान को फिर आके मैंने यहाँ पे रखा गुवाहाटी में रख के मैंने आउटलेट में उसको बेचना स्टार्ट किया, तो सेल। तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी आदमी आएगा, जो लोकल आदमी ही आएगा, गुवाहाटी का से बिलोंग करके आएगा, वो लोग फिर से क्या करेगा, पैसा देके खरीदेगा हमसे। तो वहां से क्या हो रहा है, एक मनी फ्लो हो रहा है। हम लोग का जो लोकल जगह है ना, तो लोकल जगह में जहाँ पे मैं ट्रेडिंग कर रहा था, वहां से क्या हुआ, मनी फ्लो हो रहा है, उसमें अर्निंग कुछ नहीं हो रहा है। वो बिजनेसमैन को शायद प्रॉफिट हो रहा है वो ट्रेडिंग करने के बाद, लेकिन उससे कुछ क्या हो रहा है, हम लोग का जो बाकी स्टेट है ना बाहर में, मैं स्टेट का बारे में बोल रहा हूँ अभी, लेकिन ये क्या हो रहा है कॉन्सेप्ट जो हम लोग को ग्लोबली इफेक्ट कर रहा है। सिर्फ ना कि वो हम लोग को नेशन वाइड में इफेक्ट कर रहा है, वो हम लोग को ग्लोबली भी इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि हम लोग ने रिसेंटली न्यूज में आ रहे थे, जैसे कि हम लोग चाइना वगैरह से हम लोग क्या करते हैं, जो परचेस करते हैं सामान, उसी को यहाँ पे बेचते हैं, तो मुनाफा हम लोग का कुछ नहीं होता है। जो बिजनेस करते हैं उनको को थोड़ा बहुत मुनाफा होता है, लेकिन एक्चुअल मुनाफा किसको होता है, किसका प्रॉफिट होता है, वो चाइना को होता है। तो उस सब को रोकने के लिए देखिए, अगर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो क्या होगा कि हम लोग का मनी फ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है हम लोग का मनी, यहाँ पे कुछ अर्निंग नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो एंटरप्रेन्योर होगा उसको हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि वो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके, वो ना कि मतलब कोई भी रिसोर्सेज हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को थोड़ा भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% वो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करे, लेकिन जो भी वो सामान बाहर से रहा है उसको अगर वैल्यू एडिशन देके, जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज होता है उसको अगर उसके साथ वैल्यू एडिशन कर देते, तो क्या होगा कि जो लोकल आदमी जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा था वो सामान को, उनका भी बेनिफिट होगा। उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रासरूट लेवल से हम लोग का जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी को हम लोग डेवलप कर सकते हैं एकदम ग्रासरूट लेवल से। नहीं तो क्या होगा कि एक अगर सामान हम लोग बेच रहे, खरीद रहे, तो क्या होगा, एक टाइम में आएगा हम लोग सामान किसको बेचेंगे, लोकेलिटी में सब लोग तो खरीद ही रहा है, खरीद के अपना सब पैसा ही जा रहा था, तो बेचेंगे कहाँ पे अपना। एट द पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, वो जो बिजनेस रन कर रहा था वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम लोग बिजनेस करेंगे उसको सस्टेनेबल भी बनाना होता है। सस्टेनेबल तभी बनेगा जब हम लोग उसको लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करेंगे, और जब लोकल आदमी को मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, तभी तो वो लोग परचेस कर पाएंगे ना। अगर प्रॉफिट उन लोग कमाएंगे नहीं तो परचेस कहाँ पे करेंगे। तो वो ध्यान में रख के अभी जो ये एंटरप्रेन्योरशिप का अवेयरनेस सब जगह में, हर एक मिनिस्ट्री ये सोच रहा है कि ताकि लोकल यूथ जो आगे आके एक एंटरप्रेन्योर बने, ताकि वो लोग क्या बन सके, जॉब सीकर से छोड़ के वो लोग जॉब गिवर बन सके, मतलब कोई और दूसरा को अपॉइंट कर सके। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग का पॉइंट है, क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग को देखना होगा। उसमें आता है हम लोग का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोसाइटी डेवलपमेंट, स्टेटस डेवलपमेंट। ये जो आपको ऊपर में 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहा है, दिस 4 पॉइंट्स बेसिकली पर्सनैलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड स्टेटस, दीज आर ग्लोबली इन लोग को मानते हैं कि ये 4 पॉइंट होना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक एंटरप्रेन्योर का। लेकिन फॉर बेसिकली फॉर इंडिया, यहाँ पे हम लोग का जो एंटरप्रेन्योरशिप का मिनिस्ट्री है, आईआई से जो वहाँ पे उन लोग ने बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट में डिस्कस करके ये जो 5th पॉइंट है, फैमिली को यहाँ पे इंक्लूड किया है। क्योंकि देखिए हम लोग का यहाँ पे क्या होता था, तो यहाँ पे क्या होता था हम लोग का, जो कि हम लोग का फैमिली जो है, पेरेंट्स जो होता है, तो हम लोग को बोलते हैं कि एक सिक्योर जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है, ना कि बोलते हैं कि अच्छा सा बिजनेस करो। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम सिर्फ ना कि असम में, ना कि नॉर्थ ईस्ट में, होल इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि हम लोग सभी जगह में देखते हैं कि एक अच्छा सा जॉब मिलके हम लोग अच्छा से सेटल होना चाहिए। तो इसीलिए ये 5th पॉइंट भी यहाँ पे डाला गया है कि उसके साथ फैमिली डेवलपमेंट भी हो सके, ताकि और जो हम लोग का पेरेंट्स है या फिर हम लोग हैं, तो जो यूथ है उनको और ज्यादा मोटिवेट कर सके अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर हम लोग जो भी सपोर्ट, नॉट ओनली फाइनेंशियल सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट एंड एवरीथिंग, सो कि हम प्रोवाइड कर सके। इसीलिए ये 5 पॉइंट्स आर इंक्लूडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट इज नीड्स टू बी अ एंटरप्रेन्योर टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। तो टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर,
और उसका एंटरप्रेन्योरशिप एक अच्छा से सस्टेनेबली रन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू बी एम्बिशियस, एम्बिशन होना चाहिए, विलिंगनेस टू लर्न। ऐसा नहीं कि मैंने अभी ग्रेजुएट कर लिया उसके बाद मुझे सीखना नहीं है, मैं जानता हूँ सब कुछ, अभी मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं है। हर एक पॉइंट में, हर एक दिन में हम लोग को सीखना पड़ता है, ठीक है। और एबिलिटी टू लिसन, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग से कम पढ़ा भी, जो मतलब सपोज एक अंडर ग्रेजुएट है या फिर मैट्रिक पास है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, ठीक है, तो उनका जो सजेशंस होता है ना वो भी मायने रखता है। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर को एबिलिटी रहना चाहिए लिसन करने के लिए, मतलब सुनने के लिए क्या बोल रहे हैं वो, ठीक है। क्रिएटिव होना चाहिए, असर्टिवनेस एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। असर्टिवनेस और कॉन्फिडेंस होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फिडेंट अगर नहीं रहेंगे आप, सपोज अभी एक एंटरप्रेन्योर आप रन करेंगे और आपको बहुत सारा क्लाइंट्स को मीटअप करना होगा फॉर डिफरेंट थिंग्स लाइक फाइनेंस और मार्केटिंग, तो अगर आप खुद का बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो बाकी लोग कैसे होंगे। तो कॉन्फिडेंस इज मस्ट एंड प्रिजर्वेंस मीन्स परसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको। कोई भी आप सपोज कोई भी अपना एक आइडिया है, जिसको आइडिया लेके आप एक पर्सन रहना चाहिए, और आपका जो क्या है, जो आइडिया है उसके ऊपर बिलीव रहना चाहिए। जैसे कि एक परसिस्टेंस का एकदम एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है एलॉन मस्क, ठीक है। उनका जो स्पेस एक्स का प्रोग्राम था, कितना बार फेलियर हुआ, 4 बार तक फेल हुआ, उसके बाद उन्होंने सक्सेस मिला। तो उसको क्यों मिला सक्सेस? क्योंकि वो परसिस्टेंट था अपने आइडिया के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो आइडिया लेके वो प्लानिंग जो है था उसमें चेंजेस होना पड़ता है, लेकिन आइडिया जो था ना, आइडिया उनका वो उसमें वो परसिस्टेंस रहे, लेकिन उसके बाद प्लानिंग चेंजेस हुआ, प्लानिंग में फिर से ठीक किया, क्या गलती हुआ देखा, वो सब रहना चाहिए। और करेज एंड रिस्क टेकिंग होना चाहिए, ठीक है। अभी अगर मैं रिस्क में आता हूँ, तो हम लोग क्या होता है, बचपन से ही हम लोग सुनते हैं कि ये मत करो रिस्क है, ये मत करो रिस्क है, ये हम लोग का नेचुरल मतलब है जो हम लोग बोलते हैं। अभी भी हम लोग, अगर हम लोग छोटा बच्चा को कभी साइकिल में बैठते हुए देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि देयर इज अ रिस्क, यू माइट फेल। बट रिस्क ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा निगेटिव वर्ड में ही उसको थिंकिंग लेते हैं, लेकिन रिस्क ऐसा है, एक डोर है रिस्क टू गेट सक्सेस और फेलियर। अगर रिस्क का जो डोर है उसको आप पार नहीं करेंगे तो आपको ना सक्सेस मिलेगा ना आपको फेलियर मिलेगा, ठीक है। तो रिस्क लेने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप इसमें सक्सेस होंगे या फेलियर होंगे। तो रिस्क का मतलब जो है ना, वो हम लोग को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ताकि अभी से हम लोग प्रैक्टिस भी करना चाहिए कि जब भी हम एक बच्चे को बोलेंगे कि तुम साइकिल अभी मत चलाओ, तुम छोटे हो, रिस्क है गिर जाओगे, ऐसा नहीं। तो हम लोग उसको थोड़ा सा चेंज करके क्या बोल सकते हैं कि देखो अभी आप साइकिल चलाने के लिए आप छोटा हो, लेकिन रिस्क है, आप गिर सकते हो, लेकिन ऐसा भी है कि आप अगर अच्छा से सीखोगे तो एक अच्छा साइकिलिस्ट बन सकोगे। सो रिस्क का जो पहलू है ना, उसको हम लोग हमेशा, जो उसके बाद रिस्क का बाद का जो सक्सेस एंड फेलियर है, वो दोनों को हम लोग को अच्छा से समझाना जरूरत है। वो एक हम लोग को क्या बनाना होगा, एक हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा रिस्क को समझाने के लिए, ताकि जो हम लोग का यूथ है या फिर आप ही लोग है जो आगे आएंगे, तो ये समझ सके कि रिस्क लेने से ही हम लोग को सक्सेस मिल सकता है या फिर फेलियर मिल सकता है। Then the next thing for running a good business or for sustainability, there comes quality. ठीक है, क्वालिटी इज वर्क डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट। मतलब क्या है, जो भी आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिजनेस में हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट ही डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। मैं एंटरप्राइज एक खोल रहा हूँ, उसमें सिर्फ प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। आप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। तो ये जो सर्विस और प्रोडक्ट आप लोग प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को, उसको जो भी प्रोडक्ट या सर्विस होगा उसका क्वालिटी आप लोग को एकदम मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी को आप लोग कैसे, हाउ विल मेंटेन द क्वालिटी? तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कैसा होगा, जो आपने जो प्रोडक्ट या सर्विस का जो स्पेसिफिकेशन रखा था, सपोज मैंने एक प्रोडक्ट रखा था, बोला कि हाँ ये 10 mm का लंबा होगा, या फिर जो भी हो, जो स्पेसिफिकेशन रखा था वो स्पेसिफिकेशन कंफर्म होना चाहिए। या फिर जो सर्विस होगा, वो सर्विस में अगर हम लोग बोल रहे हैं कि वो एक डोर टू डोर सर्विस होगा, तो इट हैज टू बी डोर टू डोर सर्विस। तब जो कंफर्म स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप लोग प्लान करेंगे प्रोडक्ट या सर्विस को, वो कंफर्मिटी वहाँ पे होना चाहिए आपका प्रोडक्ट या सर्विस में। फिर फिटनेस फॉर यूज,
जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर जो भी सर्विस देंगे आप लोग, वो सर्विस को और ये प्रोडक्ट को फिट होना चाहिए यूज करने के लायक। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो कस्टमर का डिमांड आप लोग को हमेशा देखना होगा, बिकॉज अ बिजनेस एंटायरली रन्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जहां पे आपको डिमांड होगा वहीं पे आपको सप्लाई प्रोवाइड करने से आपका क्या होगा, बिजनेस रन होगा। ठीक है, अगर आपका वहां पे डिमांड नहीं है और आप चाह रहे हैं कि आप सप्लाई करें, तो ऐसा नहीं है कि वो आपका बिजनेस रन होगा ही नहीं, वहां पे भी हो सकता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी हो कि वहां पे आपका लॉस हो सकता है। तो डिमांड और सप्लाई आप देख सकते हैं, वो जो भी जैसा भी डिमांड होगा, प्रोडक्ट का डिमांड है या फिर सर्विस का डिमांड है, उसको देखना चाहिए कि कैसे आप प्रोवाइड कर रहे हैं और कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तभी आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस का क्वालिटी है वो बोलेगा कि हाँ इट्स क्वालिटी अच्छा है। ठीक है, देन डिलाइटिंग द कस्टमर। डिलाइटिंग द कस्टमर मतलब क्या होता है कि हम लोग बहुत टाइम देखते हैं कि बहुत सारा ऑफर्स देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का पूजा के टाइम में हो गया या फिर बिहू के टाइम में हो गया या फिर कोई भी एक फेस्टिवल या फिर एंड ऑफ सीजन सेल्स, ये सब आता रहता है। तो क्यों आता है ये सब? तो ताकि कस्टमर डिलाइट रहे, मतलब कि एक कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, सेम पैसा में कुछ एक्स्ट्रा वो लोग को मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, कस्टमर डिलाइटेड रहेगा और बोलेगा कि हाँ ठीक है ये क्वालिटी अच्छा है, और साथ ही साथ ये लोग अच्छा ऑफर्स भी देते हैं। तो नेक्स्ट हो गया एनचेंटिंग द कस्टमर्स, मतलब कस्टमर से बात करना, कस्टमर का फीडबैक लेना, वो सब आपको रहना चाहिए, तभी आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस का क्वालिटी है वो क्वालिटी अप टू द मार्क माना जाएगा। नेक्स्ट, तो क्वालिटी अगर अच्छा होने से क्या फर्क पड़ता है? तो देयर इज अ वेरी बिग रिलेशन बिटवीन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आपका क्वालिटी अच्छा होगा, मतलब क्या होगा कि आपका वेस्टेज कम हो रहा है। अगर वेस्टेज कम हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है कि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से मतलब क्या होगा, जो अगर सपोज आपका वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा था, अभी आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो आपका वेस्टेज कम हो रहा है और प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। तो पहले आप 100 प्रोडक्ट्स बनाते थे, अभी आप 200 प्रोडक्ट्स बना रहे पर डे। तो क्या होगा उसमें, जो 100 प्रोडक्ट्स पर डे में आपका कॉस्टिंग आ रहा था, अभी 200 प्रोडक्ट्स पर डे का कॉस्टिंग में थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा, और उसी डिफरेंस के अकॉर्डिंगली आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट को आप लो कॉस्ट में मार्केट में सोच सकते हैं। तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने से क्या होगा, आपका जो एमआरपी होगा या फिर प्राइस जो रहेगा वो भी घट जाएगा। घट जाने से क्या होगा, मोर मार्केट शेयर, देन मोर मार्केट शेयर मीन्स मोर प्रॉफिट। प्रॉफिट होने से क्या होगा, बिजनेस ग्रो होगा। और जो है मैंने पहले ही बताया था कि बिजनेस जो हम लोग करना अभी पड़ रहा है, जो एंटरप्रेन्योरशिप, जो बिजनेस करना के लिए आगे आएंगे, तो उसको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके थोड़ा सा भी, अगर कुछ भी यूज करके उसको वैल्यू एडिशन देके अगर वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, उस जो सोसाइटी होगा ना, हम लोग का जो सोसाइटी लोकेलिटी में, उनका भी डेवलप होगा। तो अल्टीमेटली गुड क्वालिटी लीड्स टू अ ग्रोथ इन द सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट अभी आ गया कि हाँ ठीक है, मैंने तो ये आइडिया कर लिया, अभी मुझे क्या होगा कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज भी अलग अलग तरीका से होता है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मार्केट में हम लोग को अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलता है, वहाँ पे बहुत तरीके का अपॉर्चुनिटीज होता है। तो उसका मैं अकॉर्डिंगली 3 टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आज आप लोग को समझाऊंगा कि कैसा कैसा अपॉर्चुनिटी होता है, और थोड़ा बहुत एग्जांपल देने का भी मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफिकेशन में हम लोग का क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसे होता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी: रिकॉग्नाइज्ड अपॉर्चुनिटी, डिस्कवर्ड अपॉर्चुनिटी, क्रिएटेड और एनेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। सो रिकॉग्नाइज्ड अपॉर्चुनिटीज में क्या होता है कि वहां पे जो मैंने पहले बोला था कि बिजनेस का कैसे चलता है, हम लोग का डिमांड और सप्लाई के थ्रू ही हम लोग का बिजनेस चलता है। तो ये हम लोग को रिकॉग्नाइज करना होगा कि उस जगह में डिमांड और सप्लाई है कि नहीं। अगर उस लोकेलिटी में बिजनेस जो जिस एरिया में, जिस मार्केट प्लेस में आप लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे देखना होगा कि वहाँ पे आपका डिमांड है कि नहीं, सप्लाई है। अगर दोनों अवेलेबल है तो उसको बोलता है अपॉर्चुनिटी। तो उसको हम लोग क्या करते, उन दोनों को एक आके डिस्कवर्ड अपॉर्चुनिटी। डिस्कवर्ड अपॉर्चुनिटी में क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग का डिमांड हो सकता है या फिर सप्लाई हो सकता है। मतलब डिमांड है तो सप्लाई नहीं है, अगर सप्लाई है तो डिमांड नहीं है। ठीक है,
तो वहां पे देखना होगा, अगर सपोज एक जगह में यहाँ पे डिमांड है, तो मुझे वहां से क्या करना होगा, मुझे दिमाग लगाना होगा, मुझे प्लानिंग करना होगा कि जो प्रोडक्ट जिस सर्विस का वहाँ पे डिमांड है, तो वहाँ पे मैं वो सप्लाई दे सकूं। ठीक है, अगर सप्लाई अवेलेबल है लेकिन उस जगह डिमांड नहीं है, तो मुझे देखना होगा कि दूसरा लोकेलिटी में, दूसरा एरियाज में कहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विस का डिमांड है, तो ताकि मैं सप्लाई जो यहाँ पे अवेलेबल मिल जाए उसको मैं ट्रांसपोर्ट कर सकूं उस जगह में। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी, डिस्कवर्ड अपॉर्चुनिटी बोला जाता है। और क्रिएटेड और एनेक्टेड अपॉर्चुनिटी, ये नया टाइप का अपॉर्चुनिटी है, ये आजकल बहुत जन प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको। इससे क्या होता है कि तो sir, Hello. Hello, Manas sir. yeah, I'm Hello. getting some noise. I'm getting some noise. Yeah. There is some, Audio. Am I audible? yeah, now it is audible, sir. Actually, for a brief period, it was muted, I guess, and some audio interference was there. So you can continue. You can continue. Now it's coming properly. Okay. Hello. Hello. Yes. Hello. Yes. Now it is. Now you are. There are some network issue maybe. Uh, Now I think it is fine. You can continue. Am I audible Okay, to you, sir? thank you. Yes, you're audible. Okay. Yeah, you can continue. Okay, thank you. यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे कि क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी क्या होता है कि जहाँ पे कहीं पे दिमाग में नहीं है, लेकिन अचानक से हम लोग एक क्या कर सकते हैं उसमें उसका Just for 1 minute, I'm disturbing you, sir. Actually, your slide is not visible right now. Yeah, it's coming. It's coming now. Okay. Yeah, it's coming now. Thank you. So क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी में क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग का डिमांड होता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें एक अनवांटेड डिमांड एक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि जो हम लोग का आईफोन या एप्पल कंपनी है, उन्होंने क्या किया था, जब उन लोगों का एक प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा था जिसका नाम था आईफोन 10, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहले से एडवर्टाइजमेंट में बोल दिया था कि हम लोग इस पर्टिकुलर एक में हम लोग इस लोकेशन या इस स्टोर में हम क्या करेंगे, हम लोग का 100 प्रोडक्ट रहेंगे लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि हम लोग का स्टॉक नहीं है। लेकिन आप एक बात सोचिए, जो एक एप्पल कंपनी है जो आईफोन बनाते हैं, क्या कि तब इतना एक बड़ा उन लोग का इंडस्ट्री है वहां पे कि सिर्फ ओनली 1000 ऑफ आईफोन बनते हैं, वो 1000 to 2000 पर डे उन लोग का आईफोन्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन क्या था, एक डिमांड उन्होंने क्रिएट किया था कि सपोज जो आदमी अभी सपोज आदमी ट्राई कर रहा था, बोल रहा है कि हाँ मैं एक फोन लूंगा आईफोन का नेक्स्ट जो जब एप्पल कंपनी ने किया कि हाँ हम पर्टिकुलर डेट में तो उन्होंने एक डिमांड उन्होंने क्रिएट किया कि जो आदमी 2 महीने के बाद खरीदना था फोन, तो वो भी करता है, वो सोचता है कि हाँ 2 महीने के बाद खरीदूंगा, अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं जाके खरीद लेता हूँ इसी डेट में। तो देखा कि जो भी स्टोर्स थे वहाँ पे एक लंबा लंबा लाइन आईफोन खरीदने के लिए। उससे क्या होगा,
था ना, वो ऑटोमेटिकली बढ़ गए। कैसे? कि उन्होंने ये किया, दे दिया, हम लोग 1000 प्रोडक्ट्स अगर लॉन्च करेंगे उस दिन में, तो हम उसी खत्म हो जाएगा, सेल हो जाएगा। तो जो आदमी 2 महीने 3 महीने के बाद खरीदना फोन खरीदना चाह रहा था, नहीं इतना दिन के बाद मिलेगा कि नहीं, तो उनका एक दिमाग क्रिएट हो गया उनके अंदर कि हाँ नहीं, मुझे फोन लेना है। इस तरीके से बहुत अभी कंपनीज जो है ना, तो ये टाइप का क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी को यूज करके अपना मार्केटिंग करते हैं और उसी तरीके से सेल करते हैं। ठीक है, तो ये क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी के बाद आते हैं कि ठीक है, अपॉर्चुनिटीज भी हम लोग देख लिया, फिर क्वालिटी भी हम लोग को रखना, कैसे रखना है वो भी हम लोग को पता चल गया है। लेकिन हम लोग एंटरप्राइज को स्टार्ट कैसे करें? ठीक है, तो पहला स्टेप होगा तो स्टार्ट एन एंटरप्राइज इज रिसर्च। तो आप लोग को एक देखना होगा रिसर्च करके कि कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस आपको देना है, मतलब उसका नीड, जो आप लोकेलिटी में उसको एंटरप्राइज आप खोलेंगे, वहां पे कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस नीड है, मतलब उसका डिमांड कहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, और उसको किसको हु नीड्स इट, मतलब कौन सा एज ग्रुप को चाहिए या फिर किस तरीके का आदमी को चाहिए, कहाँ पे चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी आपका एक सपोज प्रोडक्ट है, वो आप स्वेटर बनाते हैं। ठीक है, स्वेटर बनाते हैं आप, डेफिनेटली मुंबई या गोवा में तो सेल नहीं करेंगे। जो हम लोग का ठंडा जगह पे है, जैसे कि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे आप सेल करना जाएंगे ना, तो वहां पे क्या होगा, उसमें डिमांड क्या है, स्वेटर्स का डिमांड ज्यादा है, ना कि मुंबई साइड में। तो वो हम लोग को देखना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट लोग का डिमांड ज्यादा है, वो पहले देखना होगा। तो कौन उसको खरीदेगा, उसको भी डिमांड में रखना है कि हाँ यूथ खरीदेगा या फिर खरीदेगा या फिर ओल्डर पर्सन जो एल्डर पर्सन है वो लोग खरीदेगा या फिर कंपनी खरीदेंगे, खरीदेंगे, किसको कौन खरीदेगा, उसको भी आप लोग को देखना है। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कि हाँ किसको चाहिए, पता चल गया, लेकिन उसके बाद देखना होगा कि कोई और दूसरी कंपनी से या इसको ये सर्विस या फिर प्रोडक्ट प्रेजेंटली वो लोग उसकी लोग को देखना है। और वो देखने के बाद उसको भी आप नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, आपको देखना होगा कि कंपटीशन, जो प्रोडक्ट या सर्विस का कंपटीशन है, जो कॉम्पिटिटर्स होगा, का मार्केट कैसा है उसको भी आपको देखना है। जैसे कि बहुत ऐसा है कि हम लोग उसमें कम्पीट नहीं कर सकते। माने सपोज कोई भी एक डे टू डे लाइफ का एक सामान देख लीजिए, अगर वो सपोज एक कॉम्पिटिटर है, वो बहुत ज्यादा सेल करे, तो उसमें क्या होगा, हम लोग कॉम्पीट कर ही नहीं पाते, तो उसमें फायदा नहीं है उसमें लगे रहने से। तो देखना होगा कि दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि जो प्रोडक्ट होगा उसका क्वालिटी अच्छा है, तो ठीक है आप कॉम्पीट कर सकते हैं। क्वालिटी भी है और उसका कंडीशन भी हाई है, तो आपको क्या होगा, करना होगा कि वो सेम प्रोडक्ट को सेम देंगे। तो आजकल क्या होता है, आजकल तो हम लोग वाटर का सिस्टम जो पानी का करते हैं, जैसे कि हम लोग मिनरल वाटर बॉक्स या फिर ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर जो है, तो उसमें बहुत सारे लोग उसको काम करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उस जगह में जो जैसे या फिर कोई कोई कंपनी जो है ना, उनके साथ कंपटीशन में आने के लिए अभी बहुत हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। तो एक हम लोग का स्मॉल या फिर माइक्रो बिजनेस हम लोग को क्या देखना होगा हमेशा कि हम लोग का क्वालिटी कहाँ पे दे सकते हैं, या फिर अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तभी बिजनेस क्या कर सकते हैं, हम लोग ज्यादा कर सकते हैं। और हम लोग का जो बिजनेस होगा वो मार्केट में कैसा फिट होगा, वो हम लोग को ये सब क्या करना होगा, थोड़ा सा हम लोग को स्टडी करना होगा। नेक्स्ट हो गया प्लानिंग। बहुत ध्यान से प्लानिंग करता है। दो टाइप का प्लानिंग होता है, एक प्लानिंग हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस प्लान बोलते हैं, एक होता है मार्केट बिजनेस प्लान। जो हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस प्लान होता है वो क्या होता है, ये एक जनरल बिजनेस प्लान होता है, उसमें पूरा डिटेल बिजनेस रहता है। तो क्या होता है, जो हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके पूरा डिटेल्स रहेगा कि कब हम लोग दुकान करेंगे, शॉप करेंगे, या फिर हम लोग को फाइनेंस का जरूरत होगा,
फाइनेंस कर रहे हैं, वो सब पूरा कुछ उठा रहता है कि हम मशीनरी खरीदेंगे, प्रोडक्ट सर्विस लेंगे, पूरा जो डिटेल लेआउट होगा वो होता है हम लोग का ट्रेडिशनल बिजनेस प्लान। और एक बिजनेस प्लान होता है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने हम लोग पता चले कि हमको क्या करना है, पता है कौन सा चीज हो गया प्लानिंग। तो यहाँ पे हम लोग का एक साइकिल आता है, उसको बोलते हैं PDCA साइकिल, प्लान, डू, चेक, एक्ट। मतलब करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर करना पड़ता है, काम करके हमको उसको क्या करना है, चेक करना है। तो प्लानिंग को कुछ फॉल्ट मिलता है, हम उसको क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ये PDCA साइकिल बोलते हैं उसको, प्लान, डू, चेक, एक्ट। ओके, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया फाइनेंसेस। अभी तो बिजनेस के लिए हम लोग ने रिसर्च भी कर लिया, प्लानिंग भी कर लिया, कैसे क्या करना है, किस चीज के ऊपर हम लोग को बिजनेस करना है, सब कुछ कर लिया। हम लोग को ध्यान में रखना होगा, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोग को फाइनेंस का जरूरत पड़ता है। तो ऐसा कुछ होता है कि फाइनेंस में हम लोग सब कुछ इंक्लूड करना पड़ता है। मतलब रेंट में दुकान ले, रेंट में एक वर्कशॉप बना है, तो उसका रेंट कितना होगा, या फिर प्रॉपर्टी आपको लीज में देना है, उसकी लीज का वैल्यू कितना होगा, कितना देना पड़ेगा आपको। ठीक है, मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए आपको, फिर सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए होगा, फिर प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होगा उसके लिए फाइन पैसा जरूरत है, फिर आपका जो जैसे कि हो गया लीगल फीस वगैरह होता है, लाइसेंस वगैरह होता है, तो उस सब के लिए हम लोग को फाइनेंस का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो फाइनेंस हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक तो हो गया सिंपल, हम लोग बैंक में जाएंगे, फाइनेंस के लिए अप्लाई करेंगे, बैंक में बोलेगा कि हाँ ठीक है, मेरा ये तो मैं तुमको पैसा देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि स्मॉल बिजनेस लोन्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा टाइम में हम लोग देते हैं कि बिजनेस लोन्स के ऊपर बहुत सारा देते हैं बैंक्स वगैरह, तो वो बिजनेस डॉक्यूमेंट सबमिट करने से वो लोग क्या करते हैं, वो सपोज अभी हम लोग को एक 10 लाख के अंदर बिजनेस करना है, ठीक है? तो मेरा बिजनेस का जो कॉस्टिंग आएगा सब मुझे 5 लाख रुपीज मिलते हैं, ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग का एक मुद्रा लोन बोलता है उसको, ठीक है, मुद्रा लोन। तो उसके लिए हम लोग को कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग का बिजनेस प्लान चाहिए, और क्या करेंगे कैसे करेंगे सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए बिजनेस प्लान में। वो अगर हम लोग जाके जो लाइसेंस वगैरह दिखा देते हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स के साथ लोग आते हैं, तो 6 लाख तक 10 लाख तक आप लोग को मुद्रा लोन अवेलेबल। और उसके बाद होता है स्मॉल बिजनेस ग्रांट्स, कोई कोई कहीं पे पैसा ग्रांट करते हैं, तो वो भी देख सकते हैं कि कौन कर सकता है, कहाँ से मिल सकता है पैसा। तो ऐसा भी रहता है, जो नेक्स्ट स्टेज में आता है एंजल इन्वेस्टमेंट। अभी बहुत बड़ा जोन है जो करते हैं छोटा मोटा स्टार्टअप्स को, ऐसा नहीं कि दूसरा आदमी जिसके पास थोड़ा प्रॉपर्टी हो या फिर उसका फाइनेंस हो, तो वो लोग भी क्या करते हैं, आपका बिजनेस के ऊपर पैसा लगा सकते हैं। तो ऐसा भी अगर लेते हैं, उस तरीके से पैसा लेते हैं, तो उसको बोलता है एंजल इन्वेस्टर्स। फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ जगह में देखेंगे कि जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप लोग क्राउड फंडिंग भी कर सकते हैं। सपोज आप लोग ने एक जगह पे गया, उसमें अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया, आप लोग फंडिंग करके ओके। नेक्स्ट बिजनेस बोलेंगे, बोलते हैं हम लोग प्राइवेट, इस तरह का आपका बिजनेस स्ट्रक्चर होगा। अगर आप एक बिजनेस रन करना चाहते हो, में आप बिजनेस रन कर सकते हैं, या फिर आपका उसमें करना है और उसको रन कर सकते हैं, तो उसमें आप भी तरीके से भी बिजनेस रन कर सकते हैं। कोई कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
जो start की उसी को ही रहना होगा। ये आप जब देखिए बिजनेस तो आप लोग इसको क्या करते हैं, कुछ कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ओके, ये बिजनेस नेम रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, जो हम लोग Yes, sir. Now sorry you're for audible, the sir. network issue. Okay, thank you. Uh, Excuse me, sir. Your voice is not audible right now. Sir, you are muted actually. Is it audible now? Yeah, yeah. Okay. Yeah. Sorry, I somehow muted it. Okay. ओके, सो मैं क्या बोल रहा था कि अगर हम लोग को बिजनेस का नाम रजिस्टर करना होगा तो हम लोकली कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग का म्यूनिसिपलिटी बोर्ड्स हो गया, जैसे कि गुवाहाटी म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन, या फिर अगर गांव पंचायत का एरिया में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो भी बिजनेस होगा ये फर्स्ट होता है काम कि हम लोग ट्रेड लाइसेंस बनाएं। ठीक है, विदाउट ट्रेड लाइसेंस का मतलब हो गया कि आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, पार्टिकुलर आपको वहाँ पे देना होगा कि किस चीज का आप ट्रेडिंग करेंगे, तो उसका एक लाइसेंस आप लोग को बनाना होगा। तो ये हम लोग का हो गया लोकली जो हम लोग करेंगे, या फिर म्यूनिसिपैलिटी में करेंगे, या फिर हम लोग गांव पंचायत के एरिया में जाके करेंगे। अगर सपोज आपका जो बिजनेस है उसका नाम को आप अच्छे से रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग का यहाँ पे एक आता है IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो वहां पे जाके उस पोर्टल में जाके चेक कर सकते हैं कौन सा नाम टेकन है। अगर कोई भी नाम टेकन है उसको आप वहां से ले नहीं सकते, तो उसका दूसरा नाम देखना होगा। तो वहां पे भी आप लोग अपना जो बिजनेस का नाम है वो वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, IPR में एक बार रजिस्टर करने के बाद आपका वो नाम दूसरा कोई यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप लोग अपना बिजनेस का नाम रजिस्टर कर सकते हैं। फिर आ जाता है लाइसेंस एंड परमिट्स। तो लाइसेंस एंड परमिट्स होता है कि जैसे कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कुछ सामान को तो एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनाना होगा। ठीक है, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो फूड प्रोडक्ट है तो आपको FSSAI से आपका क्या बनाना होगा, एक फूड का सेफ्टी का लाइसेंस बनाना होगा। अगर आप सपोज एग्रीकल्चर का या फिर आप सपोज फिशरी डिपार्टमेंट का कुछ काम करना चाहते, फिशरी डिपार्टमेंट से कुछ रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, मीन विभाग रहता है। तो वो मीन विभाग से आप लोग को क्या करना होगा, लाइसेंस बनाना होगा, परमिट्स लेना होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंस एंड परमिट्स आप लोग को लेना है। तो ये हो गया, ये स्टार्टिंग का काम होता है, जब बिजनेस का नाम रजिस्टर करना, लाइसेंस एंड परमिट्स बनाना। उसके बाद क्या होगा, आपका जो लैंड होगा उसको लीज में लेने के लिए या फिर प्रॉपर्टी को लीज में लेने का काम बाद में आता है, लेकिन पहला काम आता है कि आपका बिजनेस का नाम और लाइसेंस परमिट्स पहले बना लेने के लिए। ओके, फिर आता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। कोई कोई बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा तो ये बिजनेस बहुत छोटा है, मुझे इसमें accounting सीखना है। यहाँ पे नहीं, मैं खुद ही कैलकुलेट कर लूंगा, मैं खुद ही लिख के रखूंगा, कुछ कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग सिस्टम क्यों मास्टर है? क्योंकि सपोज अभी क्या हो गया कि मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसके लिए मैं कुछ सामान लाया, मुझे पता है, कितना भाड़ा है मुझे वो पता है, ठीक है, ऑयल कितना गया पता है, वो सब मैं लिख के रखता हूँ। उसके अकॉर्डिंगली मैं कॉस्ट निकालूंगा मैं प्रोडक्ट को, और जब मैं उसको बेचता हूँ कॉस्ट को ध्यान में रख के और कितना मार्जिन में मैं रख सकता हूँ उसको ध्यान में रखते मैं क्या कर सकता हूँ, वो प्राइस में मार्केट में वो प्रोडक्ट को रिलीज कर सकता हूँ। लेकिन ये अकाउंटिंग सिस्टम अगर मैं सपोज अच्छा से मेंटेन नहीं किया तो बाद में क्या होगा कि ठीक है मैंने तो इतना सामान खरीदा, उसमें से मैंने इतने में बेच दिया, मेरा प्रॉफिट इतना हो गया, लेकिन उसमें हिडन कॉस्ट बहुत रहता है, बहुत सारा हिडन कॉस्ट रहता है। सपोज आपका पेपर आपने यूज किया है, फाइल कुछ यूज किया है, वो भी तो आप खरीद के यूज कर रहे हैं, ना कि कोई आपको दे रहा है। आप तो खुद खरीद के ही ये सब यूज करेंगे ना, पेपर्स हो गया, आपका फाइल वगैरह हो गया, या स्टेशनरी आइटम कोई भी हो गया, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, ये सब अगर आप मेंटेन करके नहीं रखोगे कितना हो रहा है, तो आपको एक्चुअल जो आपका अर्निंग हो है, एक्चुअल जो आपका प्रॉफिट है, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो अकाउंटिंग सिस्टम इज अ मस्ट। नेक्स्ट आता है बिजनेस लोकेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप अगर स्वेटर एक बनाएंगे तो उसको डेफिनेटली आप गर्म जगह में बेचेंगे नहीं, तो उसमें क्या करेंगे, जहां पे उसका नीड होगा वहीं पे बेचेंगे। तो बिजनेस लोकेशन को सिलेक्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। बिजनेस लोकेशन ऐसा भी हो सकता है, खुद का घर भी हो सकता है। अगर उस जगह में आप खुद जो बिजनेस करेंगे उस एरिया के लिए सुटेबल है, आपका घर वहीं पे है, तो आप घर में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें के लिए आपको सेपरेट ऑफिस बनाने का जरूरत नहीं है। एक अगर आप सोचते हैं कि घर में मैं नहीं करूंगा, मैं सेपरेटली करूंगा, ठीक है, एक प्राइवेट ऑफिस वो सब रेंट में ले सकते हैं, रिटेल लोकेशन ले सकते हैं। ये लोकेशन के ऊपर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अगर हम लोग क्योंकि यहाँ पे सब नॉर्थ ईस्ट के हैं, कभी हम लोग अगर जो NH27 है हम लोग का, जो नौगांव जो रूट है, तो नौगांव से जब हम लोग यहाँ पे गुवाहाटी को एंटर करते हैं, तब क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि पेट्रोल पंप्स बीच बीच में एक दो आता है, लेकिन जब हम खानापाड़ा पॉइंट में पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि ढेर सारा हम लोग को पेट्रोल पंप्स मिलता है। लेकिन जब रास्ते में देखते हैं 2-3 ही मिलता है, लेकिन एक ही जगह में आके हम लोग को बहुत सारा पेट्रोल पंप्स मिलता है। तो वो लोग क्या सोच के वहां पे खोले कि ये तो पहले से कर ही रहा है, मैं यहाँ पे नया खोल के क्या फायदा होगा। लेकिन अभी क्या हो गया, इतना दिन से जो हम लोग देख रहे हैं कि वहां से अगर कोई भी अप डाउन करेगा, कोई भी नौगांव से गुवाहाटी तक आएंगे, तो वो लोग को पता है कि मुझे कहाँ पे तेल मिलेगा। मतलब हम लोग अगर खाना पर किसी तरीके से पहुंच जाते हैं तो वहां पे मुझे ढेर सारा ऑप्शंस मिलेगा, वहीं पे मैं तेल में डाल सकता हूँ अपना गाड़ी में। तो ये बिजनेस लोकेशन ऐसा नहीं है कि आप एक आइसोलेटेड जगह में अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे तो सोचेंगे कि नहीं ये मेरा बिजनेस तो यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, मेरा प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं हर टाइम पे। ऐसा कभी होता है कि कहीं पे हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, हम लोग को फार्मेसी नहीं मिल रहा है, हम लोग का कुछ दवाई चाहिए, कुछ मोशन सिकनेस हो रहा है, किसी किसी को होता है ट्रेवलिंग में, तो हम लोग ढूंढते रहेंगे फार्मेसी, मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं, लास्ट में जाके कहाँ पे मिलेगा, एक जगह में मिलेगा जहाँ पे क्या होगा कि 4-5 तो फार्मेसी एक ही लाइन में खड़ा हुआ है, लेकिन रास्ते में कहीं पे भी नहीं मिला, उसी पर्टिकुलर लोकेशन में जाके मिलेगा कि 4-5 आपका फार्मेसी वहीं पे खड़ा है। तब अब क्या होगा कि आप लोग को पता, दिमाग में वो सेट हो जाएगा कि हाँ मुझे इस रूट से अगर मैं जाऊंगा तो मुझे फार्मेसी कहीं पे नहीं मिलेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट में जाके मुझे एक फार्मेसी का शॉप मिलेगा, या फिर कोई भी हो, मैंने फार्मेसी का एग्जांपल दिया या फिर आपका पेट्रोल पंप्स का एग्जांपल दिया। तो इस तरीके से हम लोग का ढाबास भी हो सकता है, रेस्टोरेंट्स भी हो सकता है। तो हम लोग एक पॉइंट में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ढेर जगह में हम लोग का रेस्टोरेंट्स लगा हुआ है, तो ये आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो ये हम लोग का दिमाग में बैठ जाएगा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में अगर जाएंगे तो ये मुझे कहीं ना किसी दुकान में ये तो मिल ही जाएगा मुझे। तो ये बिजनेस लोकेशन का आइडेंटिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट हो गया टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट में आप लोग को क्या करना होगा, जो टीम मेंबर्स होंगे उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, जो उनका काम होगा, वर्क मोड होगा, उन लोग को पूरा आउटलाइन होना चाहिए। मतलब उन लोग को पूरा पता होना चाहिए कि वो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा जॉब उनको दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपका जो क्या बोलते हैं ऑपरेटर है वो मैनेजर का काम भी कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर का काम करेगा, ठीक है, मैनेजर का काम मैनेजर खुद करेगा। तो ये टीम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया बिजनेस प्रमोशन एंड मार्केटिंग। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आजकल तो एडवर्टाइजमेंट बहुत इजी हो गया है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी अपना अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस का जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो होगा उसको आप सोशल मीडियाज में आप क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, मतलब आसान हो गया है। पहले क्या था, हम लोग को न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ता है या फिर कहीं होर्डिंग लगाना पड़ता था, कोई देखेगा कोई आदमी नहीं देखेगा। लेकिन अभी क्या होता है, सोशल मीडिया, हर कोई किसी के पास स्मार्टफोन्स रहता है, तो सोशल मीडिया में आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस का प्रमोशन यूज कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आता हूँ जो स्मॉल बिजनेसेस है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो बड़ा बड़ा कंपनीज है उसके साथ तो हम लोग कंपटीशन में आ नहीं सकते, हम लोग को तो छोटे से ही स्टार्ट करना होगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस जब से बड़ा करके स्टार्ट नहीं होता है, एकदम छोटा सा ही, एकदम लो लेवल से स्टार्ट होके वो टॉप तक पहुंचता है। तो जो स्मॉल बिजनेस है, बहुत कोई सोचता है कि हम लोग स्मॉल बिजनेस करेंगे तो ये बड़ा कंपनीज को कैसे हम लोग टक्कर दे सकते हैं। लेकिन हम लोग का जो स्मॉल या फिर माइक्रो बिजनेसेस है उसका भी बहुत सारा एडवांटेजेस है ओवर लार्ज कॉम्पिटिटर्स। वही हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग का एडवांटेजेस है, वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। पहला एडवांटेज आ जाता है क्वालिटी एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो क्वालिटी एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है, जो बड़ा बड़ा कंपनीज है ना, वो लोग क्या करते हैं, अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसके ऊपर वो लोग पहले से रिसर्च करके वो लोग निकाल देते हैं। कुछ भी सामान उन्होंने नहीं किया, कितना लोग यूज कर रहे हैं, कितना अगर सपोज एक प्रोडक्ट मैंने निकाला, जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो एप्पल का आईफोन कंपनी है, वो लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट बहुत हाई रेंज में वो लोग मार्केट में रिलीज करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारा लोग वो खरीद नहीं सकते। तो उस तरीके से आप लोगों को देखना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट करूँ। सपोज अगर एक CFL बल्ब की मैं सोच लेता हूँ, अगर आप लोग एक CFL बल्ब या फिर कोई भी एक छोटा सा बल्ब अगर देखिए फिलिप्स का अगर खरीदने के जाएंगे, बल्ब खरीदने के लिए जाएंगे, तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है, जो कि हम लोग का जो रूरल एरियाज में है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर उसको वो प्रोडक्ट को आप लोग डेवलप कर सकते हैं, वो कॉस्ट में आप लोग उसको मार्केट में रिलीज कर सकते हैं, तब क्या होगा कि जो रूरल पीपल हैं, जो गाँव विलेज से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट को वो लोग खरीदेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लो कॉस्ट में डाल दिया तो क्वालिटी भी आपको मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट है सुपीरियर कस्टमर सर्विस। सुपीरियर कस्टमर सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो स्मॉल बिजनेसेस का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेजेस है। जैसे कि कस्टमर सर्विस में क्या होता है कि हम लोग कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनका कस्टमर सर्विस देने के लिए, क्योंकि उन लोग का एक लॉन्ग बिजनेस है, वो कस्टमर सर्विस देने के लिए क्या होता है, एक बड़ा सा लंबा प्रोसेस रहता है। लेकिन अगर स्मॉल बिजनेसेस हम लोग करेंगे तो कस्टमर सर्विस के ऊपर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छा एडवांटेजेस निकाल सकते हैं, ताकि हम लोग अच्छा कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करके वो कस्टमर को हम लोग हाथ में रख सकते हैं। ओके, देन रेस्पॉन्सिवनेस एंड क्विक डिसीजन। रेस्पॉन्सिवनेस एंड क्विक डिसीजन, इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत तरीके से मार खा जाता है। जैसे कि एक बड़ा ब्रांड है, अगर वो सैमसंग का है, सैमसंग एसी बनाता है, बहुत बनाता है, अगर उनका एसी में कुछ खराबी आता है और फिर उसको चेंज करना है या फिर उसको डिसकंटिन्यू करना है, वो लोग डायरेक्टली डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। उनको क्या करना, उन लोग का बोर्ड मेंबर्स रहता है, तो उन लोग के साथ डिस्कशन होगा, फिर वो डिस्कशन के बाद कोई पास करेगा, CEO साइन करेगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस में जाने से क्या होता है कि वो लोग क्विक डिसीजंस नहीं ले पाते। लेकिन अगर हम लोग एक छोटा माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस खोलेंगे तो हम लोग क्विक डिसीजन ले सकते हैं। सपोज ये प्रोडक्ट बना रहा था, ये प्रोडक्ट सर्विस में सप्लाई कर रहा था, लेकिन वो लोग क्या है, कस्टमर इससे सेटिस्फाई नहीं है, तो हम लोग क्विक डिसीजन लेके उसको चेंज करके कस्टमर का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। तो क्विक रिस्पॉन्सेस हम लोग दे सकते हैं, ये एक एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द लोकल मार्केट। वो भी मैंने जो पहले बताया कि लोकल मार्केट में जो लोकल पीपल है
तो उन लोग का उनका हम लोग ध्यान में रख के और अगर हम लोग बिजनेस रन करेंगे तो क्या होगा कि वो जो लोकल मार्केट है उसको हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि देखिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है या फिर जो लार्ज एंटरप्राइजेस है या फिर मीडियम एंटरप्राइजेस है, वो एक एवरेज लेके क्या करते हैं, मार्केट स्टडी करते हैं। एवरेज में मार्केट स्टडी करने से क्या होता है कि वो लोग लोकल पीपल होती है या फिर जो विलेज से बिलोंग, वो कभी-कभी कमिट हो जाता है उनके बिजनेस से। सो क्या होता है कि वो लोग जो अपना प्रोडक्ट है उन लोग को शेयर नहीं कर पाएंगे। तो वो अगर लोकल मार्केट को हम लोग ठीक तरीके से समझेंगे, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग एडवांटेजेस डिसीजंस लेंगे तो वो भी हम लोग का एक एडवांटेज बन सकता है। और इनोवेशंस, तो इनोवेशन क्या होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में, ये स्मॉल एंटरप्राइजेस में ये अच्छा एडवांटेज है कि हम लोग कोई भी इनोवेशन को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग खुद ही एक इनोवेटिव आइडिया लेके बिजनेस रन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि देखिए कि स्मॉल बिजनेस का तो क्या होगा कि आपका जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, पीपल है, वो लोग एक लिमिटेड पर्सन रहेंगे। तो वो क्या होगा कि अगर कोई एक एग्जांपल देता है कोई या फिर कोई एक सजेशंस देता है, वो सजेशन को एक्सेप्ट करने का टाइम इतना नहीं रहेगा। वो जो होगा कि लार्ज कंपनीज में जो होता है वो लोग सजेशन लेंगे, एक बड़ा बोर्ड जैसे कि बताया कि वही बोर्ड सब कुछ रहेगा, तो वो क्या होता है कि लैग हो जाता है, टाइम के बाद ही वो कब बोर्ड रिलीज होगा। लेकिन स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस में ये तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो ये सब हो गया हम लोग का स्ट्रेटेजी एंड एनालिसिस। मार्केट में हम लोग जब भी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने जाएंगे या फिर सर्विस को हम लोग लॉन्च करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग को हमेशा स्ट्रेटेजी और एनालिटिकल थ्रू ही हम लोग को एनालिसिस करके ही हम लोग को वो प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। हम लोग को एक आता है कि इंडस्ट्रियल एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या है, एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट इन विच द बिजनेस ऑपरेट्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द फोर्सेस इन द इंडस्ट्री दैट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड, प्लान फॉर एंड डील विद in order to be successful. Industrial analysis questionnaire is an usual prepared as a guide to effective and result oriented analysis of the industry. So industry analysis में हम लोग को देखना होगा कि वहाँ पे कैसा कैसा इंडस्ट्रीज है, उन लोग का क्या प्रोडक्ट है, कैसे वो लोग उसको मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर बिजनेस करेंगे, तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के बिजनेस कैसे वो लोग रन कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री में वो लोग क्या क्या चीज यूज करे, कौन सा फिल्टर्स यूज करे, कौन मॉडर्न मशीनरीज यूज करे, उसका ऊपर थोड़ा एनालिसिस करके हम लोग का बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये एनालिसिस है, उसको बोलते हैं हम लोग स्वॉट एनालिसिस। ये स्वॉट एनालिसिस को बोलते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसमें जो स्ट्रेंथ और वीकनेस हो गया, ये आपका जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करना होगा, उसको उसके ऊपर एनालिसिस करना होगा। और जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट होता है, ये आपका कॉम्पिटिटर्स का होता है। मतलब कॉम्पिटिटर्स अगर कुछ सामान नहीं दे पा रहे तो ये आपका अपॉर्चुनिटी हो गया। थ्रेट्स होता है, I request the हेलो, participant to mute himself. ओके So Sinle Rengma, please mute yourself. ओके, थैंक यू। दो स्वॉट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ वीकनेस तो मैंने बताया कि वो हम लोग का इंटरनल है, इंटरनल है, जो हम लोग का जो एंटरप्राइज का स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो हम लोग को देखना है। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस देखते हैं क्या स्ट्रेंथ्स में क्या आता है, इकोनॉमिक्स ऑफ सेल्स, स्पेशलिस्ट मार्केटिंग एक्सपर्टीज अगर आपके पास है, ये आपका स्ट्रेंथ हो गया। आपके पास अगर प्रोडक्ट का पेटेंट है तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया, स्ट्रेंथ हो गया आपका। अगर आपका प्रोडक्ट न्यू है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, या फिर आपका प्रोडक्ट डिमांड को फुलफिल कर पा रहा है तो ये आपका एक स्ट्रेंथ हो गया। अगर आपका स्ट्रेटेजिक लोकेशन में आपने ये बिजनेस को खोला है तो ये आपका स्ट्रेंथ है। कॉस्ट एडवांटेजेस फॉर प्रोप्राइटर, अगर आपका जो प्रोप्राइटरशिप से आप लोग अगर कुछ बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि कॉस्ट एडवांटेजेस भी आप रख सकते हैं। कम कॉस्ट में अगर आपका ऊपर उसके ऊपर नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, कम से कम कॉस्ट में आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस होगा उसको आप मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे, तो ये आपका एक स्ट्रेंथ हो जाता है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अगर आप जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस को अच्छा आपका चेन है, सप्लाई चेन है, तो ये क्या होता है आपका स्ट्रेंथ बन जाता है। वीकनेसेस क्या क्या होता है, अगर मार्केटिंग एक्सपर्टीज आपका पास है नहीं तो ये आपका वीकनेस हो गया है। तो क्या होगा कि ये एनालाइज करना होगा
कि मार्केटिंग एक्सपर्टीज नहीं है, तो उसको मुझे क्या करना होगा, उसको ऊपर काम करके उसको मुझे अपना स्ट्रेंथ बनाना होगा, ठीक है। लोकेशन ऑफ योर बिजनेस, बिजनेस का लोकेशन अच्छा नहीं तो लोकेशन चेंज करो, उसको लोकेशन में लाओ, स्ट्रेंथ में बदलो। तो ये सब एनालिसिस करना पड़े। क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विस आप लोग सप्लाई करेंगे उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है तो उसकी क्वालिटी ऊपर काम करो, उसको स्ट्रेंथ बनाओ। तो ये सब पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना होगा कि मेरा ये स्ट्रेंथ है, ये मेरा वीकनेसेस है, उसके जो वीकनेस होगा उसके ऊपर काम करके उसको मुझे क्या बनाना होगा, स्ट्रेंथ बनाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटीज में क्या होता है, डेवलपिंग एंड एक्सपेंडिंग योर मार्केट, जो आपका मार्केट है उसको अगर एक्सपांड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि सपोज ये एक प्रोडक्ट था, एक आपका कॉम्पिटिटर, वो कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, अपना जो एंटरप्राइज है उसको शट डाउन कर रहा है, वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं दूसरा एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो उसमें क्या होगा, आपको एक आपका जो मार्केट है उसको ऊपर आप एक्सपांड कर सकते हैं। ये हो गया एक पॉइंट। अगर आप सपोज कोई एक दो कॉम्पिटिटर्स थे, ए एंड बी, दो कॉम्पिटिटर्स थे, ये अभी सोच रहे हैं कि हम लोग कॉम्पिटिशन में नहीं आके हम लोग क्या करेंगे, दोनों एक साथ उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ जॉइंट वेंचर्स में हम लोग काम करेंगे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। फिर अट्रैक्टिव मार्केट सेगमेंट्स में अगर आप लोग मूव करेंगे, जहाँ पे आप लोग को सपोज देखा कि अभी हम लोग का यहाँ पे क्या है, बहुत सारा मॉल्स खोलते हैं, तो मॉल्स में अगर आप लोग का प्रोडक्ट को अगर लॉन्च कर पाते हैं, वहाँ पे आपका डिस्प्ले कर पाते हैं, तो एक क्या होगा, वो अपॉर्चुनिटी रहेगा ताकि बहुत सारा लोग वहाँ पे आप लोगों का प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, ठीक है। एक न्यू फाउंड मार्केट हो गया, ये आपका अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर सपोज कोई बैरियर्स था, कोविड के कारण हम लोग को क्या किया था, बहुत सारा जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारा जो क्या बोलते हैं, परमिट्स और लाइसेंस को रद्द किया जाता था, मतलब परमिट्स और लाइसेंस के बिना ही वो लोग काम कर सकते थे कुछ कुछ प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये क्या होता है, हम लोग का अपॉर्चुनिटी बन जाता है, ठीक है। लेकिन वो कोविड के टाइम पे ही क्या हुआ था कि हम लोग का एक्सपोर्ट बंद हो गया था, तो एक्सपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट ट्रेडिंग को बंद कर दिया था, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का थ्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को करना होगा हम लोग का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को, ठीक है। अगर सपोज आपका मार्केट में एक नया टेक्नोलॉजी आता है, तो वो नया टेक्नोलॉजी को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इस तरीके से बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आप लोग को आइडेंटिफाई करना होगा। मैंने कुछ पॉइंट्स लिस्ट डाउन किया है, लेकिन आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली आपका जो स्ट्रेंथ होगा, वीकनेस होगा या फिर अपॉर्चुनिटी होगा, थ्रेट्स होगा, ये चेंज हो सकता है आपका बिजनेस के रिलेटेड जो प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर डिपेंड करके, ठीक है। थ्रेट्स में क्या क्या आता है, अगर नया कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है मार्केट में, तो ये एक थ्रेट बनता है, क्योंकि वो फिर से वो सामान ही बेचेगा। तो जो आदमी 10 आदमी आपसे खरीद रहे थे, लेकिन अभी क्या होगा, 5 आदमी वहां से खरीदता है, 5 आदमी आपसे खरीद रहे हैं, तो ये एक थ्रेट बन जाता है। प्राइस वॉर आ जाता है, कोई अगर कम प्राइस में वो सामान दे रहा है तो ये प्राइस वॉर आ जाता है, वो थ्रेट होता है। कोई न्यू रेगुलेशंस दे देते हैं गवर्नमेंट के तरफ से, तो ये हम लोग का क्या होता है, थ्रेट्स बनता है। ये सब टैक्सेशन में कुछ अगर इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि हम लोग का जीएसटी इंक्लूड किया था, जीएसटी करने के टाइम में क्या होता है, जो प्रोडक्ट का प्राइस था वो बढ़ गया था, तो ये एक थ्रेट बनता है। उसको टैकल करने के लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, उसको आपको सीखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हम लोग यहाँ पे 4 पीस का ध्यान रखते हैं। एक हो गया प्रोडक्ट, नेक्स्ट हो गया प्राइस, नेक्स्ट हो गया प्रमोशन, देन हो गया प्लेस। ये 4 पीस दे आर वेरी मच वाइटल फॉर योर बिजनेस। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आपका प्रोडक्ट कैसा है, कितना प्राइस में जा रहा है, प्रमोशन हो रहा है कि नहीं, इसके ऊपर जो प्लेस होगा, मतलब कहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको ऊपर आपको ध्यान में रख के ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप लोग को डेवलप करना होगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग को अपना कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर उसका आगे कॉम्पिटिटर्स का जो उनका प्रोडक्ट है उसको हम लोग को ध्यान में रख के अपना स्ट्रेटेजी डेवलप करना पड़ता है। अगर वो लोग कुछ नया एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट के से ज़्यादा बेहतर है, तो उसको ये प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा जितना हो सके इंफॉर्मेशन गैदर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उसको भी आप उस लेवल तक लेके जा सकते हैं, ओके। फिर उसको डेवलप किया, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बनाया, फिर मार्केट में लॉन्च कैसे करेंगे उसके ऊपर ये आपको ये जो फ्लो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक जो होता है कि कैसे हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्या क्या एनालिसिस होता है, फिर बिजनेस प्लान कैसा होता है, फिर मार्केट स्ट्रेटेजी, अपॉर्चुनिटीज, ये सब तो हम लोग देख लिया। लेकिन जो फाइनेंस का बात है, मैं फाइनेंस के ऊपर भी आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ।
जो फाइनेंस होता है ना, तो गवर्नमेंट के तरफ से भी बहुत सारा फाइनेंस का मतलब रहता है, स्कीम्स रहते हैं। तो वो स्कीम तो अभी फिलहाल जो स्कीम चल रहा है वो इसको बोलते हैं पीएमईजीपी स्कीम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो उसके स्कीम के ऊपर हम लोग कैसे उसका फायदा उठा के अपना एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पीएमईजीपी स्कीम बेसिकली होता है स्टार्टअप के लिए। अगर कोई एक पुराना कंपनी है जिसने पहले से ही लोन लेके रखा है, वो कंपनी को ये पीएमईजीपी स्कीम के अंदर नहीं आता है, वो एलिजिबल बन जाता है। तो ये जो पीएमईजीपी स्कीम है, पीएमईजीपी स्कीम है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। जो मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो मिनिस्ट्री है, वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को कैसे सेगमेंट में रखते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे पीएमईजीपी स्कीम के ऊपर, जो कैसे अवेल कर सकते हैं पीएमईजीपी स्कीम को। और ये सबसे इजीएस्ट वे है आपका गवर्नमेंट सब्सिडीज लोन लेने के लिए, पीएमईजीपी। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो हम लोग बोल रहे हैं उसको डिफाइन कैसे करते हैं। हम लोग का जो गवर्नमेंट है या फिर मिनिस्ट्री है, वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को कैसे वो लोग डिफाइन करते हैं उसके ऊपर देख लेते हैं। तो जो है हम लोग का एंटरप्राइजेस बोलते हैं, बेसिकली हम लोग एंटरप्राइजेस पकड़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड सर्विस एंटरप्राइजेस। जो रिटेल एंटरप्राइजेस है, वो रिटेल एंटरप्राइजेस हम एमएसएमई के अंदर नहीं लाते। जैसे कि हो गया आपका कोई जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं गेला माल का दुकान, तो वो जो मिलता है, जो हम लोग का ग्रोसरीज वगैरह जहाँ पे मिलता है, उसको हम रिटेल शॉप में रखते हैं, उसको ना कि हम मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस के लिए रखते हैं। अगर कुछ आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो भी हम एमएसएमई के अंदर आते हैं, या फिर आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी आप एमएसएमई के अंदर आते हैं। ओके, तो दो कैटेगरीज में होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड सर्विस एंटरप्राइजेस। जो ये पुराना वर्जन था एमएसईडी के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर 2006 में एमएस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ये जैसे दिखा रहा है वहाँ पे ऐसे डिफाइन किया जाता था। जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, आपको माइक्रो कब माना जाएगा, जब आपका टोटल बजट हो जाएगा 25 लाख या फिर उससे नीचे, तो उसको क्या बोलता है, माइक्रो एंटरप्राइजेस। फिर स्मॉल को कब बोला जाता है, जब 25 लाख से 5 करोड़ के अंदर आपका अगर बिजनेस है तो, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो आपका बोला जाएगा ये स्मॉल एंटरप्राइजेस में आता है। और मीडियम एंटरप्राइज में कब आता है, जब 5 करोड़ टू 10 करोड़ के अंदर आप लोग काम करेंगे, आपका बिजनेस रन होगा, तो उसको मीडियम एंटरप्राइजेस बोलता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसी तरीके से सर्विस सेक्टर में भी जो 10 लाख के अंदर होगा उसको माइक्रो, स्मॉल में 10 लाख से 2 करोड़ के अंदर होगा उसको स्मॉल, और फिर 2 करोड़ से 5 करोड़ के अंदर होगा उसको बोला जाता है मीडियम एंटरप्राइजेस। बट अभी 2020 में उसकी को थोड़ा सा चेंज करके अभी बना दिया है थोड़ा अलग। अभी क्या हो गया है, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों को एक करके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को कैसे दिखाया जाएगा, अभी बना, इसको क्राइटेरिया रखा गया है इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर के ऊपर। There is some noise interference. I think somebody have. Okay. Yeah, it's okay now. It's okay. Okay, no issues. Thank you. So माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होता है ना, अभी वो क्राइटेरिया जो पहला का क्राइटेरिया था उसको चेंज करके अभी उसको कैसे देखा जाता है, जो इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर होगा उसी के ऊपर बेस करके आपका एंटरप्राइज को कैटेगराइज किया जाएगा माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस में। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लान एंड मशीनरी और इक्विपमेंट 1 करोड़ के अंदर है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है, तो उसको माइक्रो में पकड़ा जाएगा। ठीक है, ताकि क्या होगा, अभी जब माइक्रो में इतना सारा एक्सटेंड कर दिया था, जैसे कि हम लोग पहले देखे कि माइक्रो का कितना तक आता था, 25 लाख के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा वो माइक्रो के अंदर आता था, और 5 करोड़ के तक अंदर में आता है तो स्मॉल। तो इस तरीके से अगर हम लोग कैटेगराइज कर देंगे, तब क्या होगा, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस था वो भी अभी क्या आ जाता है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होगा वो किस तरीके से काम करता है, क्या करता है, वो भी क्या होगा, जो छोटा स्टार्टअप जो होगा, जो माइक्रो लेवल से स्टार्ट करेगा, उसको क्या मिलेगा, उसको जो अपना कॉम्पिटिटर्स है वो क्या मिलेगा, जो स्मॉल बिजनेस रन कर रहे थे उसके साथ वो लोग कॉम्पीट कर सकते हैं, ताकि उन लोगों का थोड़ा सा एरिया ज्यादा और मिले, इसीलिए ये कैटेगरी में लाया गया था। फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस कब बोला जाएगा, जब आपका प्लांट और मशीनरी के इक्विपमेंट के इन्वेस्टमेंट
10 करोड़ से कम होंगे और टर्नओवर 50 करोड़ के अंदर रहेगा, तब आपका एंटरप्राइज स्मॉल एंटरप्राइज बनेगा। और उसी तरीके से 50 करोड़ के अंदर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में रहेगा और टर्नओवर 250 करोड़ के अंदर रहेगा, तो उसको बोला जाता है मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, तभी ये करने से क्या होता है कि माइक्रो का जो अंतर था और जो अभी ये तो मैं बोल रहा था कि पीएमईजीपी स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएमईजीपी स्कीम, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई का ही एक स्कीम है। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, केवीआईसी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये केवीआईसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, डीआईसी उसका भी एक पार्ट है, एमएसएमई भी उसका एक पार्ट है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस मिलके ये पीएमईजीपी स्कीम को कंडक्ट करते हैं। ये जो उनका फाइनेंस हो गया या फिर उसका इंस्पेक्शन हो गया, ये सब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन करते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री कॉमर्स सेंटर्स। और जो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर्स या फिर टीआरडीसी टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर, ये हो गया कि वो पे जो उनको ईडीपी ट्रेनिंग मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का ट्रेनिंग जो उनको चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को, वो ट्रेनिंग हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्कीम क्या होता है, इसमें आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको 25 लाख तक लोन आप लोग ले सकते हैं। और जो सर्विस सेक्टर या बिजनेस जो आप लोग करें उसके अंदर आप लोग 10 लाख रुपीज तक लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये सब जो स्कीम्स होती है सब्सिडी स्कीम है, उसमें अभी 1 लाख का एक बिजनेस करना सर्विस सेक्टर के अंदर, तो उसमें मैं अगर ट्राई करूंगा 1 लाख रुपया मुझे मिला, तो उसके अंदर मुझे 15% to 35% सब्सिडी मुझे मिल सकता है। मतलब अगर 1 लाख लेता हूं तो उसके अंदर 35,000 रुपीज वो क्या करेगा, गवर्नमेंट मुझे प्रोवाइड करेगा। बाकी जो 65,000 होगा वो मुझे खुद रिपे करना है अपना बिजनेस रन करने के बाद। और इसी तरीके से अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैं थोड़ा और ज्यादा लोन ले सकता हूँ, 10 लाख से ऊपर भी लोन ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप 5 लाख में भी लोन ले सकते हैं। कोई कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऐसा आता है कि 3 लाख 4 लाख रुपीज का भी लोन लेते हैं। ठीक है, तो इसका लिमिटेशन है 25 लाख तक, और सर्विस सेक्टर में उसका लिमिटेशन है 10 लाख रुपीज तक। ये हो गया है फर्स्ट टाइम का लिए। अगर आपने पीएमईजीपी लोन पहले लिया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 25 लाख तक रुपीज तक और उसको अच्छा से रिपे कर दिया है, तो नेक्स्ट अगर बिजनेस को और ज्यादा आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए तो अप टू 1 करोड़ रुपीज आपको प्रोवाइड करेगा पीएमईजीपी, वो सेकंड टर्म होता है। ठीक है, तो इसमें कैटेगरीज आता है, जैसे कि मैंने बताया 15 to 35%, या दो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी एंड स्पेशल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में आता है कि अगर मैं आदमी हूँ और ये अर्बन एरिया से बिलोंग करता हूँ तो मुझे 15% मिलेगा। अगर मैं एक लड़का हूँ मुझे एरिया से बिलोंग करता हूँ तो मुझे 25% का सब्सिडी मिलेगा। स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है एससी एसटी वुमेन, फिर टीवी एरियाज में जो रहते हैं वो कैटेगरी में आते हैं। तो अगर अर्बन एरिया में लोकेटेड है तो 25% डायरेक्टली मिलता है। अगर वही आदमी अगर रूरल एरिया से बिलोंग करता है तो 35% का सब्सिडी मिलेगा। ओके, तो ये तो क्या मिलेगा, लेकिन किसको मिलता है, हु कैन अप्लाई, एंड एनी इंडिविजुअल अबव 18 इयर्स ऑफ एज जिसने क्लास 6 पास किया है। देखिए जॉब जो होता है ना, जो हम क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन जो एंटरप्राइज आपको देते हैं उसमें क्वालिफिकेशन नहीं, आइडिया चाहिए, बिजनेस आइडिया चाहिए, आपका प्लान चाहिए, उसका प्लानिंग चाहिए। तो उसमें मिनिमम क्लास ये भी नहीं रख सकते, लेकिन इसको रखा गया है क्योंकि उसको बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स में साइन करना पड़ता है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स, इसीलिए मिनिमम एक क्लास 8 स्टैंडर्ड पास तक ये रखा गया है। क्लास 8 स्टैंडर्ड अगर से तो उसके ऊपर 10 लाख सेक्टर ये अवेल कर सकते हैं। ये ओनली जो सेल्फ स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
नहीं कर सकते जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है। तो पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो अगर कोई भी लोन या फिर सब्सिडाइज लोन अवेल कर चुके हैं पहले, तो वो लोग क्या होगा, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पीएमएजीपी स्कीम। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे हम लोग, मैंने एक लिंक दिया हूँ यहाँ पे, ये लिंक को आप नोट डाउन करते हैं। केवीएस के पोर्टल है, वो पोर्टल में जाके आप लोग ये पीएमएजीपी अप्लाई कर सकते हैं। वो ही मैं दिखाऊंगा कैसे लोग अप्लाई कर। ये हो गया आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का पोर्टल। ये आप लोगों को दिखाई देगा कि ये पोर्टल खुलने से पीएमएजीपी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज केवीएसी ऑफिशियल्स हो गया, ये ऑनलाइन एप्लीकेंट्स के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पीएमएजीपी को सिलेक्ट करेंगे। पीएमएजीपी सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पीएमएजीपी पोर्टल में आके हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ऐसा एक हम लोग आधार कार्ड, ये फॉर्म को फिल करने के बाद जो मैसेज आता है कि वो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो फोटो चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फिर पॉपुलेशन सर्टिफिकेट, उसका एक सर्टिफिकेट होगा, तो उसका भी के ऊपर ये क्या है, का इसका होता है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आप या अपलोड कर सकते हैं। फिर आता है ईडीपी ट्रेनिंग। ओके, तो देखते हैं क्यों ये सब तो दिया मैंने, क्यों ये चाहिए, मतलब जैसे कि आपका पॉपुलेशन सर्टिफिकेट हो गया या फिर प्रोफिट रिपोर्ट हो गया, ये सब चाहिए। जिसमें आप आईडी नंबर और ईडीपी ने किया है कि नहीं किया है वो आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब आपने पूरा ऑनलाइन फिलअप कर दिया, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट भी कर दिया, स्कोर कार्ड आएगा। तो ये बहुत है, आपका स्कोर 60% से अबव होना चाहिए, और इसके लिए आप लोग नहीं ले सकते, क्योंकि ये देखिए पहला पॉइंट है एज, अगर जितना भी है उसके अकॉर्डिंग मार्क मिलेगा, तो आप झूठ भी नहीं बोल सकते। तो अब नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज कितना है, ठीक है, आपका ऊपर डिपेंडेंट कितना जन है, तो अगर 3 से ज्यादा हो गया तो आप लेकिन अगर डिपेंडेंट है आपके अंदर तो 2 मार्क्स आपको फुल मार्क्स ले सकते हैं। हाउस उसके अगर यस और नो उसके अंदर मार्क्स मिलेगा। ज्यादा है तो उसके लिए फुल मार्क्स मिलेगा, अगर 2 या 5 साल तो मार्क्स मिलेगा। तो इस तरीके से क्या मिलता है, स्कोर कार्ड जनरेट होता है। इसमें आप क्या करेंगे, हर के लिए आप लोग को क्या करना होगा, प्रूफ सबमिट करना होता है। कल आधार कार्ड और पैन कार्ड देने से तो सब कुछ पता ही चल जाता है आपका क्या है क्या नहीं है। तो उसी तरीके से ये एक पोर्टल पे काम करता है, और इसमें कोई भी, जैसे कि हम लोग पहले सोचते थे कि बैंक में जाएंगे, बैंक लोग कब ये भेजेगा, वो लोग एक टाइम देंगे, ऐसा नहीं है। आजकल डायरेक्टली पोर्टल में होता है, और ये एमएसएमई के अंदर जो आपका स्टार्टअप के लिए लोन मिलने के लिए, और ये लोन आपको ये प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग पहले से किया है तो आपको सब्सिडी के साथ ये मिल जाए। अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग पहले नहीं किया है तो तब क्या होगा कि आपका तो लोन सैंक्शन हो सब्सिडी अमाउंट है, वो आपका ईडीपी ट्रेनिंग होने के बाद ही आप लोग को गवर्नमेंट आप लोग को। इस तरीके से बहुत सारा पॉइंट है जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, मार्क्स कैरी कर सकते हैं। इससे आपका एक टोटल मार्क्स जनरेट होगा। तो वो टोटल मार्क्स जनरेट करके आपको क्या होगा कि जितना भी आपको कहेंगे कि 60% के अबव, 60% से 75%, ऐसा नहीं कि 90% आपको हो गया, 90% होने से भी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना पड़ता है। 60
85 तक ठीक है, ओके। नहीं तो 90% हो गया तो आपको और सारा डॉक्यूमेंट्स और ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा, और ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आई प्रूफ्स देना होगा आपको। तो बेस्ट है कि आपको आराम से आप 60 to 75% तक स्कोर कीजिए, तो आराम से जितना भी अपने स्कोर ध्यान रखा होगा, 10% आपको खुद का भी पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। जितना रुपीज, सपोज एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने 10% आपका भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ओके। ये डॉक्यूमेंट्स है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स बना आपको क्या कर सकते हैं, स्कोर कार्ड में अपलोड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स का, ओनिंग अ हाउस, ये सब करना होगा। दिखा देता हूँ आपको है, कितना दिन तक रहे हैं, पेरेंटल हाउस है कि नहीं, ये सब होगा। सर्कल ऑफिसर से साइन करके लेके आना होगा, या फिर विलेज से आपको ये सर्टिफिकेट लेना होगा। स्कोर होगा डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन और ये हो गया हम लोग का। तो आज का सेशन में ये इन बात ये है कि एक ही दिन में आपको तो मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा हम लोग का जो यूनिवर्सिटी और जो बहुत दिन से लगे हुए हैं, तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा कभी ऑफलाइन हो सके सब अच्छे से, और हम लोग टीम इसी का अच्छे से जाके और अच्छे से समझा पाएंगे, सब हम लोग को एक खोलने के लिए जाना चाहिए, ओके। थैंक यू। अगर आप लोग का कुछ आप लोग पूछ सकते हैं। Thank you, sir, for your wonderful talk. And I'm sure that Thank you. all the participants will be very benefited from your talk. So I would like to ask the participants if they have any doubt to please, those of you who have any doubt, please unmute yourself and please feel free to ask. Anyone who has any doubt, they feel free to ask. Anyone? I think none of the participants are having any doubt. Okay, all the इतना अच्छे से समझा दिया कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया। So anyone having doubts can definitely ask me without any hesitation. I'll try my best to give you an answer. Anyone? Anyone among the participants? So if nobody is having any doubt, then I think later on, if any participant has any doubt or any query, I can pass it on to you, sir. Later also, if any participant has any doubt or query, I will collect it and I will send it to you. Anytime. Okay. So. Yes, anytime. Okay, so thank you very much, sir, for your wonderful talk. And now I would like to invite Supran Chakraborty, sir, to give a summary of today's session. Supran Chakraborty, sir. Thank you, Vidartha. It was indeed a very nice session that we had attended, and we have learned a lot. I hope there are definitely a few questions from the students, but maybe they are not willing to say, or maybe they are shy for a bit. So we'll definitely collect the questions, as Vidartha sir has mentioned, and we'll pass it on to you, sir. So for this session,
It is a proud moment for the institution's Innovation Council, Don Bosco College of Engineering and Technology, to conduct the Impact Lecture Series session today on 13th June 2022 and share with the participants about the innovation in small and medium-sized enterprises. The today's impact session was delivered by Mr. Manas Pratim Pathak. He beautifully demonstrated the requirement of tool room and training center in Guwahati to the audience. He gave a detailed explanation on the pros and cons of job and entrepreneurship, and also he mentioned the different steps to start an enterprise and many more. The Impact lecture session are an unique idea of the Ministry of Education's Innovation Cell, AICTE, to create awareness in the field of innovation, entrepreneurship, startup, IPR, etc. Today's Impact lecture is an eye-opener regarding the opportunities and growth drivers of the startups in India. The session was extremely beneficial to the student community as our expert speaker, Mr. Manas Pratim Pathak, has very well explained the motivation and challenges faced in the startup world. The faculties who have attended the session are also benefited, as in the present day, teachers too play an important role in the entrepreneurial ecosystem, so as to motivate the young minds to think out of the box. So Don Bosco College of Engineering and Technology, ADBU, is always willing to encourage and handhold the budding entrepreneurs, and likewise, the entire community of our university is benefited by such wonderful sessions. I would like to give my sincere thanks to the Ministry of Education's Innovation Cell, AICTE, which is led by Dr. Abhay Jaira, for their immense financial and moral contribution in conducting today's session. I would like to provide my sincere thanks to Honorable Vice Chancellor of our university, Father Stephen Mavali, Pro-Vice Chancellor Father Joseph Nalanat, Principal Sir Dr. Manoranjan Kalita, Registrar Father Johnny Jose, and President IIC Dr. Ujjal Sharma. I would like to acknowledge the immense support received from my colleagues, Mr. Gitartha Kalita, Mr. Ankur Goswami, Dr. Minal Kanti Sen, Mr. Vikas Agarwal, Mr. Sudip Kalita, and others in successfully conducting the session. Last but not the least, my heartfelt gratitude and thanks to the speaker, Mr. Manas Pratim Pathak, for sparing his time. We are looking forward to more such interactive sessions, and definitely we will try to have an offline interactive session soon with you, sir, so that the students really benefit when they get to interact with you face to face. So with this, I would like to hand over to Gitartha Kalita to conclude the session. Thank you very much. Thank you, Supran Chakraborty sir, for the wonderful summary. So with this, we'd like to conclude the session. Thank you very much to everyone. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you everyone. I hope the session was informative. जितना भी हो सके मैं सिंपल में रखा ताकि सबको अच्छा समझ में आए एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर. So thank you, and आगे और भी इंटरेक्टिव सेशन हम लोग बना है इसी के ऊपर. So thank you everyone. Can we leave the session now? Yes, sir. Yes, sir. Sir. We can conclude. Okay. Thank you. Okay. Thank you, sir.